Hi everyone, let me quickly check if we are live, if I'm connected with all of you, and then we shall begin the class. Should be connected, but checking is important. I've made this mistake of not checking the connection, and in the past I've done this, and it has actually taken a toll. I had to repeat the entire thing. So let's quickly check this, and then we can start. Yes, so I'm there. All right, so this is great. Okay, all right. Hi everyone, good afternoon. I'm Rachana and I welcome you all to this YouTube live streaming. My dear friends, to those of you who are watching me for the first time, let me quickly take a moment to introduce myself. I've been an active educator with Unacademy for past few months, and I've been teaching business correspondence and reporting in the CA category. And I'm sure many of you must be there on Unacademy who are associated with me and have been my students, and others as well are most welcome to join in here. Many of you are connected with me over LinkedIn platform as well. I've been an active writer there. I've been connecting with many of you, and we've been exchanging thoughts. We've been discussing several topics and ideas. It's wonderful. It's my pleasure always to connect with young professionals from the fraternity and otherwise also from diverse domains. I've been working with professionals and students. So it's always a pleasure to connect with students and to work with professionals. So, dear all, I'm a chartered accountant, have been in the industry now for a little more than 20 years. My practice spans over 18 years now, and I've worked with initial part of my career. I worked with several corporate houses. I worked with big and small Indian companies, with multinational organizations, with big four companies as well, and then and then through my in fact, through my practice, I have been associated with multiple entities, various organizations, small, large, medium sized organizations. And for over almost a decade and a half now, it's been 15 years and little more than that, I've been extensively working with students and with professionals from diverse domains at all the levels almost. I've been working with them to help them develop their communication skills, their soft skills, and also I've been assisting them with professional grooming. So this has been my area of expertise. दोस्तों, ये एक ऐसा एरिया है, मैं हमेशा जब भी मेरी बातचीत आप सभी से होती है at all the platforms where I have interacted with you all, with young professionals, with students, I have always made it a point टू टेल यू ऑल एक्सप्लिसिटली कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस लेकर के आता है जब आप जो है अपने कदम इंडस्ट्री में रखने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं आपके एकेडमिक करियर के दौरान जो है, या एकेडमिक आपका जो फेज़ होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपके अपने प्रोफेशन को, अगर आप प्रोफेशनल स्टडीज़, आपने प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे CA स्टूडेंट्स है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एनरोल किया है, आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, आप CWA के लिए आपने एनरोल किया है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस दौरान बड़े एस्पिरेशंस होते हैं, आगे जाकर के हम ये करेंगे, आगे जाकर के हम ये बनेंगे। जब हम लोगों को देखते हैं अपने आसपास, your role models must be some chartered accountants, some entrepreneurs who are doing very well, and you have seen them, now you see them at like high profile positions. आप उनको जो है head करते हुए देखते हैं different domains, आप अच्छे designations पर उनको देखते हैं। कहीं ना कहीं हम सब भी अपने आप से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। होता क्या है, especially with all those students and professionals who come from slightly remote backgrounds, India is vast, right? We all know our country well, बड़ा देश है हमारा, कुछ कुछ हर फ्यू किलोमीटर्स पर जो है कल्चर चेंज होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, हम सब डिफरेंट कल्चर से आते हैं, और यही तो खूबसूरती है, यही तो हमारे देश की जो है वो ब्यूटी है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हम रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो कैच है वो ये कि जो रिमोट रूरल एरिया से कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत टेक्निकली कॉम्पिटेंट होते हैं, दे आर वेरी शार्प, बहुत उनमें ग्रास्पिंग पावर होता है, ये मैंने खुद देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पैर जमाने में क्या दिक्कत आती है, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है
वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने क्वालिफिकेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करने में जो है दिक्कत आती है। आप लोग मुझे बताइए, आप में से जैसे आप सब अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप ग्रुप्स में रहना पसंद करते होंगे, आपके दोस्त होंगे। हम अक्सर जो है ग्रुप्स में, हम भाई कम्युनिटीज़ में हर कोई रहना पसंद करता है। एज ह्यूमंस वी ऑल आर सोशल बींग्स। तो आप मुझे बताइए कि आपके वो दोस्त जो बहुत अच्छी बातें कर पाते हैं, क्या वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है? आपके कॉलेज में, आपकी कम्युनिटी में वो लोग जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, जो ज़्यादा बेहतर आर्टिकुलेट कर पाते हैं, क्या वो ज़्यादा अच्छा रेपुटेशन, क्या वो ज़्यादा अच्छा रेपो जो है वो एंजॉय नहीं करते? आप घर में देखिए, अगर आप सिबलिंग्स वगैरह हैं तो भी जो बेहतर एक्सप्रेस कर पाता है, जो बात अपनी बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिनमें जो है स्पीकिंग एबिलिटीज़ जिनकी बेहतर होती हैं, जैसे आप इलोक्वेंट हैं क्लासरूम्स में, जनरली जो मॉनिटर्स हैं या फिर आप देखिए जो प्रीफेक्ट्स होते हैं, उनकी भी आप देखेंगे कैसे ये चयन करने में आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कहीं ना कहीं हर किसी के लिए आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़, दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट of your personality. It actually reflects a lot about you, the way you speak, the way you carry yourself, the eloquence, the flow and the choice of words that you make. ये सारी चीज़ें बहुत कुछ कहती हैं आपके बारे में। हर किसी की इच्छा भी है दोस्तों आज की डेट में। इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं नेसेसिटी बन गई है। इट हैज़ बिकम, कहना चाहिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो नेशनल लैंग्वेज का तो नहीं, बट एक जो है ऑफिशियली हम सब अकॉर्ड करते हैं कि इंग्लिश एक हमारे लिए जो है कंपल्शन बन गया है। कहीं ना कहीं नॉलेज उसका इंपॉर्टेंट हो गया है। हम सब बोल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप बोल नहीं सकते, आप में वो झिझक हो सकती है क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रही है इंग्लिश, लेकिन बोल आप सभी लेते हैं। आप सब आजकल मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स, दे आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर मीडियम, स्टेट बोर्ड, कोई भी आपका बोर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज तो आप डेवलप कर सकते हैं। लैंग्वेज डेवलप करना एक बात है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज डेवलप करना, आपको फ्लो जो है, स्पीच आपकी कैसी होनी चाहिए, इलोक्वेंस, वो सब डेवलप करना एक दूसरी बात हो जाती है। एक है कि आप जोड़ जोड़ कर धीरे धीरे बोल सकते हैं, राइट? नाउ दैट विल नेवर बी इन अ फ्लो। ल्यूसिड जो जैसे है ना, बस टूटे नहीं, आपको सुनने का ही मन करे, मजा आता है ऐसे लोगों के साथ बातचीत करके, तो ये आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? थोड़ी सी प्रैक्टिस से पॉसिबल है दोस्तों। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, थोड़ी सी अगर आप मेहनत करें, एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स सीए जैसा, वो अगर आप परस्यू कर सकते हैं, तो स्पीकिंग एबिलिटीज डेवलप करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। आज आपको कुछ इफेक्टिव टिप्स दूंगी यहाँ पर। ये पूरी बातें मैंने आपसे इसलिए कही कि आप समझ पाए सिग्निफिकेंस स्पीकिंग एबिलिटीज का, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व है इनका। और कहीं पर भी आप जाएं, चाहे ग्रुप डिस्कशंस हो, चाहे आपके जॉब इंटरव्यूज हो, या और कहीं आप बिजनेस मीटिंग्स में हो, अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस जो है, आप सीए हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको अपने क्लाइंट से बातचीत करनी है, अगर आप मैनेजर हैं, आपको अपनी टीम के साथ चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है, योर स्पीकिंग एबिलिटीज विल प्ले अ वाइटल रोल एट ऑलमोस्ट every area, in every area, even at your पर्सनल स्पेस पे अगर आप बेहतर बातचीत कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, सही आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप्स को भी, चाहे किसी के भी साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, आप ये रिलेशनशिप अपनी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए है सेशन। ऑल ऑफ यू आर वेलकम एंड लेट्स talk about it. Let's talk about some unique and some effective methods and ways to improve your speaking abilities over the next 50-55 minutes. Right. Now, let's first understand what is speaking. क्या है स्पीकिंग? आपके दोस्तों कोई सवाल हो प्लीज लिखते रहिएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मैनी क्वेश्चंस एज इज पॉसिबल फॉर मी टू रिस्पॉन्ड ओवर हियर। इसके अलावा जो है मैं आपको अदरवाइज भी रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ आपके लिए। आप लिंक्डइन पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप अनअकैडमी पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस क्लासेस के दौरान हमारे डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज स्पीकिंग? स्पीकिंग क्या होता है? कन्वेइंग इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेसिंग थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज, राइट? हम जब वर्ड्स के द्वारा, वर्ड्स कहाँ होते हैं? किसी भी लैंग्वेज में, के द्वारा जब हम बातचीत करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो आपकी स्पोकन स्किल्स होती है। कैसे बेहतर आप, कितना बेहतर आप बोल पाते हैं, वो स्किल में आ जाएगा। व्हाट इज स्पीकिंग? स्पीकिंग इन जनरल इज expressing yourself and your feelings through a language, through spoken words, right? It must be understood by the listeners. Important point कि भाई जो भी आप बोल रहे हैं, speaking कब complete आपकी मानी जाएगी? When it is understood by the listeners. And speaking skill क्या होता है? Skill is the ability to convey effectively.
आप स्किल्ड स्पीकर हैं, कब माना जाएगा? स्किल क्या होता है? स्किल की डेफिनेशन पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि भाई एबिलिटी टू डू एनीथिंग इफेक्टिवली would be considered a skill, right? So speaking skill is the ability to convey your mind, your thoughts, your ideas, your feelings effectively to your listeners, right? To your रिसीवर जो है, अगर आप सेंडर हैं, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में बोले, अगर आप सेंडर हैं तो अपने रिसीवर तक करेक्ट बात पहुंचा पाना, इफेक्टिवली बात पहुंचा पाना, ये आपकी स्पीकिंग स्किल्स। 3 पार्ट होते हैं दोस्तों एसेंशियली, है ना, किसी भी स्पीकिंग के। वाई, क्यों बोलना है, वाई टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, क्यों बोलना है आपको। कई लोग बड़बोले होते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, बोलना है, नहीं बोलना है, क्यों बोलना है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हैं, पहले ही स्लाइड से मैं आपको दे रही हूँ बहुत सारा मटेरियल ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। क्या आप हमेशा झक 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 कहीं आप हमेशा ऐसा तो नहीं, आपको बहुत ज़्यादा वार्तालाप की आदत है, आप हर चीज़ में ज़रूर अपने, ऐसे मेरे क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर जगह होते हैं, आसपास आपके ग्रुप में भी होंगे, आपके नज़दीक भी होंगे। वाई टू स्पीक इज क्रूशियल, स्पेशली जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपने एनरोल किया हुआ है, स्पेशली जब हम बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात करें। वाई टू स्पीक, क्या सचमुच में बोलना ज़रूरी है? व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या वो मटेरियल रेडी है आपके पास, क्या वो वर्ड्स तैयार हैं आपके पास? व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, how to present what is in your mind, how to say things appropriately, how to present, how to convey your thought appropriately। आप सब अग्री करेंगे कि कोई भी बात बोलने का 2 तरीके हो सकते हैं, कोई 2 से अधिक तरीके हो सकते हैं, पर 2 डेफिनेटली हो सकते हैं। आपको कोई बात पहुंचानी है किसी तक, आप मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है, मैं अग्री नहीं करती, एक हो सकता है मैं अपना डिसएग्रीमेंट जो है एग्रेसिवली शो कर दूं कि ये बिल्कुल बकवास बातचीत हो रही है, मैं आई डिसएग्री कंप्लीटली एंड दिस इज ऑल लाइक जस्ट वेस्ट, आपने समय बर्बाद कर दिया, मैं ऐसे बोल दूं। या फिर मैं उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके, इफ आई एक्सप्रेस माई डिसएग्रीमेंट एंड आई अलाउ अदर्स टू स्पीक एंड आई स्टिल टेल them that okay, I disagree with what you're saying, this is my opinion, right? So this is there can be always 2 ways of speaking, 2 ways of conveying an idea. So how to speak is the sender's choices, the choice of the person who is conveying the idea, who's the speaker, right? What to speak must be clear, क्या बोलना है आपको, वो आपके पास तैयारी जो है वो जरूर होनी चाहिए। सो these are important 3 elements of speaking। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, प्री स्पीकिंग प्रिपरेशन। जब भी आप चाहें कि आप बहुत अच्छा बोलें, वो आपका बोलना अच्छा कैसे होगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी, है ना। आप देखिए, अगर ना आप अगर स्कूल की हम बात करें, मान लीजिए क्लासरूम की जब हम बात करते हैं, इम्प्रॉम्प्टू अगर आपसे कुछ पूछा जाता है, भाई क्लासरूम में मैम ने पूछा कि आप सब जो है इस क्वेश्चन का, XYZ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब आपको उस समय कुछ हाथ उठाएंगे, कुछ आधा हाथ उठाएंगे, राइट, कुछ पूरा हाथ उठाएंगे, पर यहाँ पर क्या रहेगा, लैग रहेगा कहीं ना कहीं। हर कोई जो है उसी तैयारी से बोल पाए, ये जरूरी नहीं है। बट if teacher told you that tomorrow I'm going to ask you this question, you all prepare and come. Now you have prepared your answer, you have practiced it, now the answering part becomes much easier for you. So next day you go to school, you're all set, you're all prepared, so all the hands must be raised, all the hands will be raised, right? ये चीज़ होती ही है, ये चीज़ जो है प्रैक्टिस पर काफ़ी, प्रिपरेशन जो है हर चीज़ को इजी बना देती थी। कोई भी चैलेंज अगर है आपके पास, आप अगर इफेक्टिवली प्रिपेयर करते हैं तो चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं। ना व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड? लिसन इफेक्टिवली। कभी भी जब आपको कुछ बोलना हो, उसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिसन इफेक्टिवली एंड अंडरस्टैंड। इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, मैं भी आपसे बातचीत करूंगी, पर हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलना चाहिए। स्पीकिंग शुड नॉट बी जस्ट इन रिस्पॉन्स बिकॉज यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू समबडी। इफ समबडी रेज्ड अ क्वेश्चन और समबडी initiated a conversation, your response must be initiated after listening to them effectively। ये नहीं कि आपको जस्ट रिस्पॉन्ड करना है तो आपने कर दिया, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, ये आपने सुना है ना, अंधे गूंगे बहरे वाली कहानी आपने सुनी होगी कि किसने बोला हाँ हाँ कहाँ जा रहे हो, तो बहन ने हाँ हाँ मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, ये चीज़ आपने सुनी होगी, राइट। दिस इज अ फेमस टेल जो सभी इस बारे में कहीं ना कहीं सबने सुना होता है कि आप एक ही चीज़ को कई तरीके से, सब लोग एक ही बातें बोल रहे हैं बट एक दूसरे की बात कोई भी नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पर इफेक्टिव लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, जब आपने समझ लिया है, सो देयर शुड नॉट बी अ रश टू स्पीक। आपको सिर्फ बोलना है इसलिए आप जो है फटाफट की कहीं मैं बोलूं तक कोई और ना बोल ले उससे पहले, इसके बजाय हमेशा प्रेफर टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। टेक अ पॉज, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपको धक्का नहीं दे रहा बोलने के लिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो।
ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, स्ट्रक्चर योर स्पीच और थॉट्स। आपको जो भी बोलना है वो प्रैक्टिस कीजिए। ब्रश अप योर नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, कि आपके पास बोलने के लिए इनफ मटेरियल है, उसको आप ब्रश अप कीजिए, फिर आप तैयारी कीजिए बोलने की। ये है धीरे धीरे आपकी जो प्रैक्टिस जब आप करने लग जाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं आप इम्प्रॉम्प्टू भी आपकी तैयारी होने लग जाएगी। जैसे ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशंस, ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ जॉब इंटरव्यूज, इफ यू लिसन टू द क्वेश्चन इफेक्टिवली, you will be able to organize your thoughts there at that moment. Since you know the answer well, since you are supported by the knowledge pool that you have, since you have an extended vocabulary, you will be able to answer fairly quickly. You will be prompt in answering, right? तो ये प्रैक्टिस, ये प्री स्पीकिंग प्रिपरेशन होती है दोस्तों। कोई भी स्किल जो है प्रिपरेशन के द्वारा अर्जित की जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, एक यहाँ पर ना ये ट्रैफिक लाइट एनोलॉजी होती है एक्टिव लिसनिंग के लिए। हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड है, ट्रैफिक लाइट तो आप सब जानते हैं, देख करके आपको फटाफट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो है रेड लाइट, स्टॉप ऑल अदर एक्टिविटीज। स्टॉप होता है, ये स्टॉप है तो क्या स्टॉप करना है आपको, सारी दूसरी एक्टिविटीज छोड़ दीजिए। जब आप सुन रहे हैं पूरा ध्यान अपना केंद्रित कीजिए कि क्या बात हो रही है, आपको किस चीज का जवाब देना है, आपको किस बारे में बात करनी है, वहां पर अपना पूरा का पूरा फोकस लगा दीजिए। स्पेशली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू लर्न स्पीकिंग, आपको जो है सीखने की कोशिश करें व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू डेवलप योर स्पीकिंग एबिलिटीज, स्पीकिंग स्किल्स, राइट। नाउ येलो इज लुक, look directly at the speaker. Eye contact actually reflects a lot of confidence in any candidate, any person. तो जब आप बोलना चाहते हैं, look directly at the speaker. Listen and reflect. ध्यान से सुनिए। जब कोई बोल रहा हो और आपको उस बात का जवाब देना है या फिर उनके साथ एंगेज करना है, ध्यान से उनको देखिए और बात को इफेक्टिवली सुनिए। रिफ्लेक्ट कीजिए। सुनते ही कई सारे थॉट्स आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। अगर आप एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं तो then you have to react, green देखिए, then you have to react how, identify the important points। कोशिश अगर आपकी रहती है कि भाई आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करने के, चाहे जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह है, वहां पर आप पेन पेपर लेकर के भी बैठ सकते हैं। अगर आप इफेक्टिवली सारे पॉइंट्स को कवर करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर मेंबर को डिस्कशन के दौरान आप जवाब देना चाहते हैं, मेक अ मेंटल पिक्चर। ये इमेजरी, ये भी बहुत इफेक्टिव चीज होती है भाई, एक पिक्चर आप बना सकते हैं माइंड में और वो आपको काफी हेल्प करती है जवाब देने में या बातचीत करने में। रिकॉर्ड इन पॉइंट फॉर्म, बुलेट्स में अगर आप नोट करेंगे वो हमेशा जो एक रेफरेंसर के तौर पर रहता है। आपने देखा होगा इवन स्टेज पर, जैसे जब जो कई सारे इफेक्टिव स्पीकर्स होते हैं, एमिनेंट स्पीकर्स होते हैं, इनफैक्ट जब मैं खुद भी कई बार जाती हूँ, चाहे कोई भी मुझे कोई लेक्चर लेना हो, इट कुड बी एनी प्रेजेंटेशन, क्या होता है जो ऑडियंस होता है, ऑडियंस का साइज अलग अलग होता है। ये आप जैसे शुरुआत कर रहे हैं, सो 1-on-1 हो सकता है ना, 1 to many। अब मेनी की काउंटिंग जो है वो 15-20 से लेके 1000, 1500, 2000 तक भी हो सकती है, राइट। सो यू कैन बी स्पीकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, सो योर ऑडियंस में बी लार्ज। तो वहां पर आपको क्या करना होता है भाई, छोटा सा एक अपने हाथ पर आप जो है पॉइंट्स नोट करके एक रेफरेंस रख सकते हैं वहां पर, सो दैट यू आर एबल टू कवर ऑल दी पॉइंट्स इफेक्टिवली। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, उसमें क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑडियंस के साथ में हैं, स्टेज पर हैं, तो भाई यू मे टेंड टू ओवरलुक और मे बी फॉरगेट सम पॉइंट्स। क्या होता है डिस्कशन के दौरान कई बार दूसरी तरफ निकल गए, दूसरी तरफ डिस्कशन वगैरह शुरू हो गई, तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस ना हो जाए आपसे, कहीं आप उसको जो है भूल ना जाए, इसके लिए आप एक पॉइंट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल, मेक स्केचेस एंड मेक कनेक्शंस। आपको पता होना चाहिए, कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कई बार लोग प्रेफर करते हैं, माइंड मैप्स भी बहुत इफेक्टिव वेज हैं। तो इस तरीके से जो है आप रिएक्शन से पहले, जब लिसनिंग के दौरान आप ये सारी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। इसको स्टार्ट कीजिए अपने बोलने के पहले, जैसे तोल मोल के बोल होता है, थोड़ा सा अगर आप तोल के बोलना शुरू करेंगे, यू कैन सेट एवरीबडी, ऑल ऑफ अस हैव दैट पोटेंशियल, वी कैन बिकम इफेक्टिव स्पीकर्स। नाउ एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग, क्या क्या आपको करना चाहिए, हाउ यू कैन बिकम एन अ गुड स्पीकर, एन इफेक्टिव स्पीकर। प्रिपरेशन इज द की। किसी भी चीज में आप अगर प्रिपरेशन लगाएंगे वो दिख जाती है, वो क्लियरली दिख जाती है, इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। नाउ आई हैव बीन ऑन द बोथ साइड ऑफ द टेबल। अगर मैं आप बात करूँ भाई, कुछ साल पहले मैं खुद जो है इंटरव्यूज दे रही थी, आई वाज आल्सो अ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, राइट, ऑफ एक्सपीरियंसिंग हाउ व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली अप्लाई फॉर एन इंटरव्यू, अप्लाई फॉर अ पोजीशन, टू गो देयर, मीट अप विद द पैनल, राइट, द इंट्रोडक्शन, टू आंसर, द एंग्जाइटी, सारी चीजें। And now I'm an interviewer as well. So I help a lot of organizations hire
प्रोफेशनल्स फॉर द ओपन पोजीशंस विद देम। तो वहाँ पर कई बार ना यही चीज़ होती है, प्रिपरेशन का लेवल कैंडिडेट्स का बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है। एज एन इंटरव्यूअर आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड, नॉलेज है, आपका कॉन्फिडेंस एंड योर विलिंगनेस, यही चीज़ें जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रिपरेशन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आपका सब्जेक्ट का नॉलेज तो ज़रूरी है ही, साथ में आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने कीन हैं, विलिंग है, आपने अपनी रिसर्च की है कि नहीं, और प्रिपरेशन हर एक बात में झलकता है। इवन अगर आपने प्रैक्टिस की है कुछ आंसर्स की तो वो भी पता चल जाता है। जैसे प्रिपरेशन एग्जामिनर को भी पता चल जाती है, हम केवल इंटरव्यूज को ही क्यों लिमिट करें, कभी भी किसी भी ग्रुप डिस्कशन में जो फैसिलिटेटर होंगे वो कैसे पिक करते हैं टॉप 4-5, उनको पता चल जाता है भाई कौन प्रिपरेशन करके आया है, कौन नहीं करके आया। एग्जाम में हम क्यों बोलते हैं प्रिपरेशन, वाई प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट, द वे यू राइट, द वे यू अटेम्प्ट क्वेश्चन shows your preparation for the exams, and that is what we say, that best prepared students will always find the exam paper easy, right? तो ये प्रिपरेशन का लेवल ही है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाता है। नाउ नॉलेज ऑफ द ऑडियंस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, भाई मान लीजिए, मैं अक्सर ये बात कई बार बताती हूँ, मान लीजिए आप प्रैक्टिस में ही हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आया अपनी प्रॉब्लम लेकर के, कोई उनको टैक्स से रिलेटेड सोल्यूशन चाहिए, कोई स्क्रूटनी है उससे रिलेटेड उनको सोल्यूशन चाहिए ना, कोई और लिटिगेशन मैटर है। अब आप अपने क्लाइंट से जब बातचीत करते हैं तो क्या आप टेक्निकल जार्गन्स में बातचीत करते हैं, क्या आप टेक्निकल जार्गन्स यूज करते हैं? शायद आप अगर करने लग जाएं तो नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट आपके पास आने से कतराए, कि जैसे हमारे यहाँ कोई क्लाइंट आए तो हम इनको बिल्कुल रॉ लैंग्वेज, हम उनको बिल्कुल उनकी लैंग्वेज में समझाना पसंद करते हैं। आई ऑलवेज टेल आर्टिकल्स ऑल्सो एंड टू माई जूनियर्स ऑल्सो दैट वी मस्ट नो हु इज आवर ऑडियंस। उनको उनके ही लैंग्वेज में समझाना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी छोटे बच्चे से आप बात करते हैं तो आप कैसे बात करते हैं, हाँ, अले ले करके आप बात करते हैं, उनकी तरीके से आप उनसे बातचीत करते हैं, उनके लेवल पर जाके बातचीत करते हैं। वहीं अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपने किसी पीयर ग्रुप में आप बात कर रहे हैं, आप अपने टीम मेंबर्स से बात कर रहे हैं, यू मे यूज appropriate jargons, right? Because we all are at the same level of understanding. तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, knowledge of your audience। यहाँ पर अगर आप जो है इफेक्टिवली कनेक्ट कर पाएंगे कभी भी while speaking, it is most important to interact and connect with the audience। आप प्रीच नहीं कर सकते, आप एक तरफ की कहानी नहीं सुना सकते कि भाई आप बस हमें सुन लो या बस मैं आपको सुन लूँ, वो फिर इफेक्टिव स्पीकिंग के कैटेगरी में नहीं आएगा। इफ यू वांट टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रिपेयर वेल, मस्ट नो योर ऑडियंस, कीप इट सिंपल। बहुत हम जो है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करें या फिर हम बहुत जार्गन्स यूज करें, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि भाई इफ यू आर एन इफेक्टिव स्पीकर यू मस्ट नो सम लाइक थरो वर्ड्स ऑफ एंड टेक्निकलिटीज ऑफ द लैंग्वेज। नो, योर बेसिक ग्रामर, द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस मस्ट बी गुड एंड कीप इट सिंपल, कीप इट अंडरस्टैंडेबल, बी इट एनी लैंग्वेज। आप स्पीकिंग जो है कोई ऐसा लिमिटेड नहीं कि हम यहाँ पर जरूर इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, बट किसी भी लैंग्वेज की ब्यूटी तभी है जब वो आसानी से समझ में आए, शुद्ध हो, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं, मैकेनिकल एरर्स जो हैं वो ना हो, और वो सिंपल हो, समझ में आए, राइट? किसी भी, जब हिंदी में भी हम वार्तालाप करें, हम किसी किस्म की बातचीत करें, अगर समझ में आती है, लैंग्वेज फ्लो जो है अच्छा होता है, वर्ड्स की चॉइस अच्छी होती है, क्लियरली हमें पता चल जाता है कि अरे वाह कितनी अच्छी ना, कितनी बढ़िया यहाँ पर बातचीत। अब कई बार आप वापस आते हैं, बताते हैं बहुत अच्छी बातचीत हुई या फिर बिल्कुल बेकार बातचीत हुई। आप किस पर बेस करते हैं, आप इन बातों को, इस फीडबैक को आप किस पर बेस करते हैं? समझिए आप कि जो भी इंटरेक्शन था उसने अगर आपको प्रभावित किया है, अगर उससे आप जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं, बातें आपको समझ में आई हैं, बातें आप तक पहुंची हैं, आप कनेक्ट कर पाए हैं और आप रिस्पॉन्ड कर पाए हैं, तभी तो आपने कहा कि मेरी बहुत अच्छी बात हुई थी। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है रखना। लैंग्वेज हमेशा सिंपल होनी चाहिए, लैंग्वेज हमेशा अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। स्पीक विथ सिंसेरिटी एंड पैशन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैं अपना जी जान लगा करके आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई एम बीइंग सिंसियर एंड आई एम बीइंग जेन्युइन इन माई अप्रोच। द मोमेंट आपको ये लगे, द मोमेंट यू फील ये जो है ऊपर ऊपर की बातें चल रही हैं, शायद ये बात हमारे कोई काम आने वाली नहीं है, या फिर मैम सिर्फ अपना चैप्टर जो है या टॉपिक पूरा करने के लिए बोल रही है, सो यू वुड नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड टू लिसन टू me, whatever inputs I'm giving to you, right? So anytime when you speak with sincerity and you speak with passion about that particular topic or about whatever feelings you want to convey, अगर आप उसके लिए sincere हैं तो आपकी speech जो है अपने आप जो थोड़ा सा उसमें flow आ जाता है और आप अपने आप जो है थोड़ा eloquent हो जाते हैं। So always try to speak with sincerity, always maintain that genuineness, right? Fluency is very important and fluency comes with preparation and with advanced
वोकेबुलरी, ये आपको हमेशा कोशिश करनी है। फ्लुएंसी आपकी तभी आएगी व्हेन यू आर एबल टू ट्रांसलेट एन आइडिया इनटू वर्ड्स, यू हैव एन आइडिया क्लियर इन योर माइंड। देखिए इंग्लिश के साथ में ना प्रॉब्लम ये है, इंग्लिश हैज़ नॉट बीन आवर फर्स्ट लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, फॉर मोस्ट ऑफ अस इन इंडिया, फॉर मैक्सिमम ऑफ अस, majority 95% plus people, we have not been speaking English as our first language. For majority of us, English has been our second language, right? हमारी second language रही है, हमारी mother tongue। मेरे लिए आई बिलोंग टू सेंट्रल इंडिया, माई मदर टंग इज हिंदी, राइट? देन आई पिक्ड अप लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम स्कूल। तो ये हमारे लिए फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। और क्या होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है, हम लैंग्वेज जो है ना वो लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ते हैं, हम लैंग्वेज जो है वो सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं कि भाई हमें सब्जेक्ट स्कोर्स हमें अच्छे करने हैं। और क्योंकि हम सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, हमारा फोकस जो है वो हट करके, वो ग्रामर से हट करके क्रैमिंग पे आ जाता है कि भाई मुझे याद करना है और मुझे उसमें जो है स्कोर अपना अच्छा बढ़ाना है। जबकि हमारी मदर टंग के साथ ऐसा नहीं होता, हम उससे सराउंडेड रहते हैं, चारों तरफ हमारे कोई ना कोई मदर टंग में बातचीत हो रही है और कोई हमसे कुछ कह रहा है। तो अगर आपको सोते समय भी कुछ पूछा जाए और आपको अपनी मदर टंग में रिस्पॉन्ड करना, आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। सो दिस फ्लुएंसी कैन बी गेन्ड व्हेन यू कैन सराउंड योरसेल्फ विद द लैंग्वेज एंड यू कैन एनहांस योर वोकेबुलरी। चॉइस ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, फ्लुएंसी कब आती है, जैसे अगर आपने मदर टंग में आपने जवाब दिया तो आपकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज है। इफ यू चोज योर मदर टंग, से आई चूज हिंदी, आई वाज मोर फ्लुएंट, राइट? नाउ आई हैव अ ग्रेटर कमांड ओवर इंग्लिश, सो आई विल बी फ्लुएंट विद बोथ द लैंग्वेजेस। सो आपका जितना कंफर्ट होगा किसी लैंग्वेज से, वो अगर आप चूज करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी ज्यादा रहेगी। भाई कोई मराठी है, अगर वो मराठी में बोलेंगे तो बहुत फ्लुएंट रहेंगे। हो सकता है उनको इंग्लिश और हिंदी में उतनी फ्लुएंसी ना आए। सच है ना ये बात? आप समझ रहे हैं इस बात को? कोई बंगाली है, कोई साउथ से आए हैं, तो अगर उनको इंग्लिश या हिंदी में बोलना हो शायद उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो। वहीं अगर उनको अपनी लैंग्वेज में बोलना हो, तो चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज मटेरियल। चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन फ्लुएंसी और टू बिकम एन इफेक्टिव चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज क्या हो गया? इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने कई बार बात की है दोस्तों। आने वाले समय में फिर आपसे बात करूंगी। आपके जेस्चर्स, कैसे आप अपने हाथों को मूव करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर बोलते हैं कि अगर मेरे हाथ बांध दिए जाएं, ही टेल्स मी ऑफन दैट यू नो इफ आई टाई योर हैंड्स यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक, एंड दैट इज अ ट्रूथ। अगर मेरे हाथ आप बांध दो तो फिर मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद बोल ही ना पाऊँ। हैंड जेस्चर्स होते हैं, है ना, वोकल प्रोजेक्शंस एंड वेरिएशंस, इसको पैरा लैंग्वेज भी कहा जाता है। हाँ, ये पंच जो होता है, जिस तरीके से बात अपनी बोली जाती है, इंटोनेशन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, स्टैंस, आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे अपनी बात को रखते हैं सामने, आपके आई कॉन्टैक्ट्स, कहाँ देखकर आप बात करें। मैं आपको बताती हूँ ट्रेनिंग्स के दौरान, और मैं बहुत सारी, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर एंड अ काउंसलर। तो मैं जब बातचीत करती हूँ अपने ट्रेनीज से, अपने मेंटीज से, तो क्या होता है वहाँ, जैसे कई बार हम मॉक सेशंस कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं, तो कई सारे जवाब देते हैं ना, कैंडिडेट्स जवाब देते हैं जब वो यंग प्रोफेशनल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज एंड ऑल, सो दे वुड आंसर एंड दे वुड ट्राई टू लुक अवे समवेयर। कभी यहाँ देख रहे होंगे, कभी वो वहां देख रहे होंगे, और वो बातचीत जवाब दे रहे होंगे। सो दैट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इससे आपका स्पीच जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज द फ्लो इज टोटली डिस्टॉर्टेड। So while you look at somebody, you maintain eye contact and then you speak, you would sound more confident and you'd be able to present more effectively. तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्म रहिए, plant your feet properly। अगर आप बैठ करके बोल रहे हैं, खड़े हैं, तो ऐसा टेढ़ा होकर के नहीं खड़े होना चाहिए। आपको अपने पोस्चर का खास ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसे टेढ़े होकर खड़े हैं, एक पॉकेट में हाथ डाल के कमर को एक तरफ आपने ऐसे झुका रखा है, तो ये चीज़ें, आपको अपना स्टैंस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, आपको अपना पोस्चर जो है उस पर खास ध्यान देना चाहिए। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो उसको नॉर्मल रखिए। कहीं अगर कोई अच्छी बात है, सो यू कैन मेंटेन अ प्लेजेंट स्माइल। अगर कोई चीज़ ऐसी भी है जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन, नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर भी यू शुड रेफ्रेन फ्रॉम फ्राउनिंग और मेकिंग रॉन्ग एक्सप्रेशंस। वो आपको अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली अबाउट द इंस्टेंसेस वेयर यू हैव टू कोऑर्डिनेट वर्क और वेयर यू हैव टू स्पीक विद पीपल इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, इवन इन पर्सनल कैपेसिटी। अगर आप बहुत खराब एक्सप्रेशंस के साथ किसी से बात करते हैं, तो इट रूइंस योर रिलेशनशिप्स विद पीपल। सो व्हाइल इफ यू मेंटेन प्लेजेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर आप जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आप जो बात बोल रहे हैं, अगर उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो आपकी स्पीच को और बेहतर बना देता है और इफेक्टिव बना देता है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर ना प्रोफेसर मिराबिया का एक प्रिंसिपल है दोस्तों, इट इज कॉल्ड 55-38-7 रूल। ठीक है, 55-38-7। सो 55% हियर of any
कंप्लीट जो पूरा कम्युनिकेशन होता है, प्रोफेसर एल्बर्ट मराबिया ने काफ़ी सारे कम्युनिकेशन मॉडल जो है उन्होंने रिसर्च किया, काफ़ी कुछ रिसर्चेस उस पर बेस्ड भी हैं, और ये नतीजा है यहाँ पर कि 55% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस तरीके से बात को रखते हैं, कैसे खड़े होते हैं, आई कॉन्टैक्ट आपका है ना, ये सारी बातें जो है इसमें आ जाती हैं 55% में। 38% इज योर para language. 38% is your para language, which means your vocal projection, variation, modulation, intonation. कैसे आप बात को बोलते हैं, जैसे आप तुरंत समझ जाते हैं, अगर आपकी मम्मी ने आपसे कोई बात कही है, स्ट्रांगली कही है, आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये बात मुझे गुस्से में कही गई है। पापा ने अगर आपको कोई बुरी बात नहीं बोली, लेकिन अगर जोर से बोली है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये बात मुझे गुस्से में कही गई है, या फिर ये बात मुझे बहुत प्यार से कही गई है ना। ऐसे आप दूसरी चीजें आप देखिए कि जैसे इंटोनेशन, टोन, सरकाजम है, ह्यूमर है, वेदर इट इज सरकास्टिक, वेदर इट इज स्टायर, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप कैसे समझ जाते हैं? दैट इज हाउ, ये जो कहा जाता है ना 38% जो है, दैट इज हाउ इट फंक्शंस। बातचीत का मेन यहाँ पर वर्ड्स जो है उनका कहना चाहिए, जो सिग्निफिकेंस है, जो स्पोकन वर्ड्स हैं, उनका एक्चुअल सिग्निफिकेंस किसी भी कम्युनिकेशन में केवल 7% होता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, the meaning that words only convey is only 7%. बाकी जो मीनिंग है वो कहाँ से इन्फर किया जाता है, इस 38% और 55% से। कैसे आप बोल रहे हैं, what was your body language, how much eye contacts you maintained, how was your facial expression, how was the tone of what you said, right? vocal projection कैसा था, modulation, pause, ये सारी चीजें। ये एग्जाम्पल भी मैं कई बार दे चुकी हूँ। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, देखिए पॉजेस से ही कितना फर्क पड़ गया है ना। जोर से बोल रहा है, धीरे से बोल रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। कोई बोले कि आप ठीक हैं, या फिर कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, या फिर आपकी मम्मी कई बार आपसे पूछे तुम ठीक हो, पढ़ाई कैसे चल रही है, और तुमने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, आप कहते हो, तो मम्मी समझ जाती कि भाई यू आर नॉट वेल, है ना। या फिर आपके कोई क्लोज, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कजिन्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो समझ जाते हैं, दे आस्क यू कि क्या बात है, या तुम्हारी आवाज से बहुत कुछ पता चल जाता है। सो यू हैव टू टेक अ कंट्रोल एंड कमांड ओवर दीज थिंग्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर वोकल प्रोजेक्शंस, एज वेल एज योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, योर स्पोकन वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू वांट टू अटेम्प्ट इफेक्टिव स्पीकिंग, राइट। दोस्तों, कॉमन बैरियर्स क्या हैं, क्यों लोग बहुत अच्छे से, कई बार जो है आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज जो है वो हाई क्यों नहीं होती, क्यों आपको जो है चैलेंजेस एक्सपीरियंस आप करते हैं व्हेन यू वांट टू स्पीक कंफर्टेबली, व्हेन यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू एक्सपीरियंस। ये कॉमन चैलेंजेस है दोस्तों, ये जो यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, योर डिक्शन, आपको लग रहा है लोग मुझे जज करेंगे। कॉमन बैरियर, मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता मेरी लैंग्वेज बहुत हाई है, मुझे लगता है जैसे ही मैं बोलूंगी सब लोग मुझे जज करने लग जाएंगे, मुझे नहीं लगता मेरी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फ्लुएंसी है। लो जी, हो गई। कॉन्फिडेंस जो है, जो लेवल था, जो मैंने सोच रही थी कि मैं बातचीत करूंगी, वो डर से नीचे चला गया, अब मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, राइट। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो सबसे ऊपर रीजन है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे कॉमन बैरियर है व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक कंफर्टेबली एंड फ्लुएंटली, जो इफेक्टिव स्पीकिंग ना होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ नॉलेज। जब आपको नॉलेज होता है, वर्ड्स आप निकाल लेते हैं। Perhaps your language may differ, but if you have significant knowledge about a particular topic or a subject, you will be able to convey that knowledge. कई बार ऐसा होता है, आपसे इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा सवाल पूछा गया जिसका आपको नॉलेज था ही नहीं, कोई से क्विज वगैरह कंपटीशन कोई चल रहा है, आपसे जब ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है जो आपको आता है, और फटाक से यू रेज योर हैंड एंड यू वांट टू आंसर प्रॉम्प्टली, राइट। At the same time, if one question is asked of which you do not know the answer, so you would just try to look away, है ना, मुझे आता ही नहीं है तो मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ। So lack of knowledge is another one। पहले ही बताया आपको, lack of confidence कई बार low proficiency की वजह से भी आता है। ये भी जो है lack of confidence के लिए low proficiency in the language is an important factor। I'm not proficient with English, or maybe I'm not proficient with the language required during the interaction. I have to speak in Hindi. Say, for example, somebody comes from South and they say that, "Bhai, I'm not proficient with the language. I don't think I'll be able to speak." Now, this is a barrier. Why I would not be able to speak comfortably? Same thing applies to English as well. That I have I'm not proficient with the language. I don't think, I doubt my diction. I don't think I can choose appropriate words to express myself. I'm not confident about the grammar. उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, मुझे आता तो है बट आई एम हेजिटेंट टू स्पीक।
आई हैव हेजिटेशन विद स्पीकिंग, हेजिटेशन बहुत बड़ा रीजन, शाइनेस, हेजिटेशन कि मुझे आता है बट स्टिल आई एम अनकंफर्टेबल टू स्पीक अप, मैं गलती करूंगी, मुझे लग रहा है, कोई मुझे जज करने लग जाएगा, आई एम टू रिलक्टेंट, आई फील मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है, इसीलिए मैं हेजिटेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा रीजन है। कई सारे स्टूडेंट्स दे कम फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, दे कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बट दे आर सो हेजिटेंट टू स्पीक। दिस हैपेंस विद मी most of the time. There's so many students who are good with language, who have great scores with the language, but still they hesitate to speak. When they are asked to speak up, they are able to communicate well. थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, but again they are hesitant. तो ये सब चीज आप प्रैक्टिस के साथ जो है इन बैरियर्स को आप ओवरकम कर सकते हो। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोस्तों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये तो बहुत कॉमन हो गया है यूथ में, स्पेशली आपकी जो एज होती है ना, स्पेशली 17, 18 से लेकर के आपका जो है अर्ली 30s तक, स्पेशली ये चीज़ ज़्यादा बॉदर करती है। यू फील इन्फीरियर। मैंने जैसे शुरुआत में बात की थी, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम रिमोट बैकग्राउंड्स, रूरल बैकग्राउंड्स, जब आप आते हैं चकाचौंध में, शहरों में, आप अपने लिए काम वगैरह ढूंढ रहे हैं, आप दूसरों को देखते हैं मे बी मोर डेक्ड अप, है ना, अपीयरेंस वाइज आपको लग रहा है वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, आती है इन्फीरियरिटी। लगता है कभी कि यार मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ही तैयार नहीं हूँ, है ना, यू स्टार्ट इमिडिएटली यू स्टार्ट फीलिंग इन्फीरियर अबाउट योर सेल्फ। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये दिमाग में घर कर जाता है और वहीं पर आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं और आप नहीं बोलना चाहते। आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आपको पहले ही आप ये नोशन पाल लेते हैं कि आप जो भी बोलेंगे शायद वो गलत बोलेंगे, आप वो दूसरों के हिसाब से, दूसरों के कंपैरिजन में आप में उतना रिफाइंड तरीके से नहीं बोल पाएंगे। ये पहले ही आपके मन में पनपने लग जाती है बात। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो घर कर लेता है, जो आपके इफेक्टिव स्पीकिंग को डिस्टॉर्ट कर देता है। दोस्तों उसको कभी मत आने दीजिए अपने मन के अंदर, कभी मत आने दीजिए। टेक्निकल एबिलिटीज में आप कहीं से कोई कम नहीं है, दूसरों के साथ कंपेयर करना ही नहीं। इन्फीरियरिटी तो तब आए ना जब आप दूसरों के साथ कंपेयर करो। एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन कम्स विद देयर ओन यूनिक क्वालिटीज, यूनिक कैपेबिलिटीज। और ये जो चीजें हैं ना, स्पीकिंग एबिलिटीज की बात हो गई, राइटिंग स्किल्स की, ये सब डेवलप की जा सकती हैं। आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स जो कि इतने जो बेंचमार्क माने जाते हैं डिफिकल्ट एग्जाम्स के, अगर आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं तो लैंग्वेज डेवलप करना कौन सी बड़ी बात है। इन्फीरियरिटी कभी भी मन में मत आने दीजिए। आप ऑलरेडी, आप जिन बैकग्राउंड से आए हैं, आपने अपनी जो मेहनत से आपने इस ये बूते पर आप आए हैं और आपने इतनी मेहनत से ये मुकाम जो आपने हासिल किया है, यहाँ से आगे बढ़ना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ट्राई टू इम्प्रूव। आई हैव क्रिएटेड मेनी वीडियोज दैट कैन हेल्प यू टू एनहांस योर अपीयरेंस, दैट कैन हेल्प यू टू एनहांस योर लैंग्वेज, your writing skills etc. your professional grooming पर भी मैंने बहुत सारे lectures जो है यहाँ पर दिए, आप ढूंढ सकते हैं, आप मेरे नाम से ढूंढ सकते हैं। You can see my name here, CA Rachana Kare, and you can search on Unacademy channel as well. A lot has been given and I'll keep talking to you about these topics time to time. राइट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अनदर मेजर इशू कि किसी ने आपसे कोई जब बातचीत की तो आपको समझ में नहीं आई। ये होता है कई बार जब हम देखते हैं भाई रूरल बैकग्राउंड से आप आए या फिर आपका लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको, मान लीजिए मैंने इंग्लिश में आपसे कुछ पूछा और आपको अगर समझ में नहीं आया, है ना, there has been a lack of understanding, so you may not be able to respond that effectively. वो अगर मैंने आपसे आपकी मदर टंग में पूछा होता या फिर आपकी प्रोफिशिएंट लैंग्वेज में पूछा होता तो आप मुझे बता पाते। कॉमन मिस्टेक है ना, हो सकता है ना, ये बात होती है जनरली। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ डिक्शन, है ना, योर इनएबिलिटी टू चूज करेक्ट वर्ड्स, इनएबिलिटी एक्सप्रेस। जब आप अपनी बात को करते रह जाए लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप आर्टिकुलेट नहीं कर पाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। इट्स अ कॉमन बैरियर, inability to express, you are unable to articulate what you want to tell, right? उसको आप ठीक तरीके से बता नहीं पा रहे। ये सारी चीजें, all these problems can be overcome. How to improve? First thing is grow your vocabulary. How can you grow your vocabulary? अपनी vocabulary बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं दोस्तों। रीडिंग एक सबसे इफेक्टिव तरीका है। रीडिंग जो होता है इससे आपकी vocabulary दिन रात बढ़ती ही रहती है। आपको अंडरलाइन करने चाहिए जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, और स्पीकिंग को आपको और स्पीच इंप्रूव करने के बहुत सारे पढ़ते हैं। 5 मिनट थ्रू द डे आप अपने लिए आधा घंटा निकालिए अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए। जस्ट ट्राई टू पुल आउट हाफ एन आवर फ्रॉम दिस 24 आवर्स। आप अपने सोने खेलने के टाइम
पे कभी भी सिर्फ आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा आप निकालिए और देखिए अपना इंप्रूवमेंट। आप मेजर कर सकते हैं और अगर आपको फर्क लगे तो मुझे लिखिएगा जरूर। यू ऑल मस्ट राइट बैक टू मी इन केस यू सी द डिफरेंस। आई हेल्प यू फर्दर। अगर आपको लगता है और आपको मेरी मदद की जरूरत है, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर लिंक्डइन, यू कैन राइट टू मी ओवर देयर इन द डायरेक्ट मैसेजेस, और you can write to me over Unacademy messages as well. राइट, सो यू नीड टू ग्रो योर वोकेबुलरी। जब आपकी वोकेबुलरी एक्सपैंडेड, जब आपकी वोकेबुलरी एडवांस रहेगी, तो आपको ट्रांसलेट, जो भी थॉट आपके माइंड में है, आपको वर्ड पता है तो आप फटाफट ट्रांसलेट कर लोगे। जब आप ट्रांसलेट कर लोगे तो फिर वो आपको एक्चुअली धक्का नहीं मारना पड़ेगा। यहाँ आपको आइडिया आया, यहाँ आपके माइंड ने ट्रांसलेट किया एंड इट विल ऑटोमेटिकली फ्लो आउट, राइट। सो यू नीड टू ग्रो योर वोकेबुलरी। स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स। ये आपका जो रीडिंग और राइटिंग वोकेबुलरी है, ये एक साथ बढ़े तो काफ़ी काम आती है। एनी थॉट आपको दिन भर में 4-5 लाइन से ही आप भले शुरुआत कीजिए। कोई भी इमोशनल थॉट, कोई प्रोफेशनल थॉट, कोई राइटअप आपको ज़रूर जो है रोज़ लिखना चाहिए। 4 से 5 लाइन लिखने की कोशिश कीजिए रोज़। डू दिस फॉर 12 days एंड यू कैन राइट बैक टू मी। पूरा एक वीक भी आप अलाउड। My dear friends, you get any newspaper home, any English daily, or if not, then अगर अभी थोड़ा सा कोविड वाला टाइम है, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, कोई बिजनेस मैगजीन ले लीजिए पुरानी पड़ी हुई, कोई लिटरेचर का पीस ले लीजिए। रीड अलाउड फॉर 5 to 7 minutes in a day. You should read aloud. जोर जोर से पढ़िए। देखिए अपनी आवाज़ आपको कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है आपको सुनने में अपने आप को। वॉच अ डॉक्यूमेंट्री। इट कैन बी एनी डॉक्यूमेंट्री। आप लोग सब चैनल्स देखते हैं, मुझे पता है सब लोग देखते हैं। नेटफ्लिक्स है, कितने सारे आते हैं आजकल, ये वूट वगैरह, कितने सारे चैनल्स आजकल चलते रहते हैं। लोग वेब सीरीज वगैरह में इंडल्ज करते हैं। इंस्टेड वॉच अ डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होंगी, आपने सुनी होंगी। जैसे प्लानिटेरियम वगैरह आप जाते हैं, आप सुनते हैं, कितनी क्लैरिटी रहती है। हाँ, मार्च ऑफ पेंगुइन्स, एनीथिंग, कोई प्लानिटेरियम वगैरह में आप यूनिवर्स के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं, कितनी क्लैरिटी रहती है ना। सो यू कैन डेवलप from there. When you listen, you can actually develop your speaking. तो आप वो डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखनी चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। लिसन टू गुड पॉडकास्ट। आजकल पॉडकास्ट जो है काफ़ी इन है। यू कैन लिसन टू एनी बिजनेस पॉडकास्ट। आप चाहें तो चैनल्स ढूंढ सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई सारे बिजनेस चैनल्स के भी अपने पॉडकास्ट हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स जो अपने व्यूज शेयर करते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आप सुन करके देखिए एंड ट्राई टू इमिटेट। आप लोगों को पता है, मैं एक बात आपसे शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी, how I developed my speaking abilities. जब मैं छोटी थी मुझे बहुत शौक था बोलने का। अब बोलने का बहुत शौक था, तो जो न्यूज़ रीडर्स होते थे, जो CNN BBC वगैरह के न्यूज़ रीडर्स होते थे, जब वो बोलते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उनकी तरह मैं इमिटेट करती थी उनको, उनकी तरह मैं भी बोलने की कोशिश करती थी। अब कौन सुनेगा था। आई यूज्ड टू गो स्पीक फॉर माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, कि भाई मैं ही बोलूँगी और मैं ही सुनूंगी। आई लुक एट माई सेल्फ एंड आई यूज्ड टू फील हैप्पी। सो this is how, when you're inclined, when you're actually willing to develop certain skills, you will find out ways, you will find out effective ways to go about it. ये सारी tips जो हैं, ये आप actually practice कर सकते हैं। Listen to a podcast, watch any news channel or any game shows. बहुत सारे जो हैं इंग्लिश गेम शोज आते हैं, अमेरिकाज गॉट टैलेंट और बहुत सारे गेम शोज आते हैं। आप कुछ इंग्लिश चैनल्स प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर न्यूज़ और गेम शोज देखिए। उनकी इंग्लिश जो होती है, द लैंग्वेज इज क्लीन, द लैंग्वेज इज मोर लाइक हाउ वी कॉन्वर्सेट, डे टू डे कॉन्वर्सेशंस किस तरीके के होते हैं, वैसी लैंग्वेज वहाँ पर होती है, तो आपको पिकअप करने में ईजी होगा। अदरवाइज इफ़ यू वॉच से, अगर आप कोई और चैनल्स देखेंगे, अगर आप कोई सोप्स ऑपेरास वगैरह देखेंगे, मूवीज देखेंगे, तो शायद जो है वो फ्लो आपको तुरंत से समझ में ना आए। सो व्हेन यू आर लर्निंग, especially when you have when you plan to attempt effective speaking, when you're planning to learn it, then it is recommended that you listen to podcasts, you watch some documentaries, and also you watch some news and game shows. There the language is with which you'll feel familiar, right? The language will be more familiar and you will be able to understand it better. Speak to a mirror. Most effective way to develop your speaking skills is to look into a mirror and speak. वहाँ पर आप बोलने की कोशिश कीजिए, मज़ा भी आएगा दोस्तों आपको। आप मज़े कर सकते हैं बोल करके मिरर के सामने, अच्छा लगता है। एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू आर स्पीकिंग। रिकॉर्ड योर वॉइस, लिसन टू इट। ये चीज़ कई सारे मेरे ट्रेनिंग्स ने की है, एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एनहांस योर स्पीकिंग स्किल्स। आप कैसा बोलते हैं, आप रिकॉर्ड कीजिए।
ये चीज़ आप मैंने आपको 12 दिन कहा था, इस चीज़ को आप 1 हफ्ते ट्राई कीजिए एंड राइट टू मी, यू विल एक्चुअली सी अ मेजरेबल डिफरेंस। यू राइट टू मी अबाउट इट, अबाउट योर एक्सपीरियंस। आप रिकॉर्ड कीजिए, आप जब बोलते हैं कोई भी चीज़, आप कोई भी एक टेक्निकल टॉपिक आप याद कर लीजिए, अपना इंट्रोडक्शन, अपने लिए एक एलिवेटर पिच ही आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद आप उसको बोलिए 1.5 minutes, 1 minute आप बोलिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, राइट। नाउ you have prepared it better, record it after 2 days, alternate days record कीजिए, towards the end of the week that will be your 4th recording, right? Now see the difference, first recording और 4th recording में आप difference देखिए, बहुत फर्क मिलेगा आपको। This is how you can improve. Read every day, right? And read aloud, speak to a mirror, do these, divide करना है, 30 minutes होते हैं, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए उसको, 5-6 एक्सरसाइजेस हैं ये, आप इनको डिवाइड कर दीजिए और रोज करने की कोशिश कीजिए। Always maintain eye contact. When looking into a mirror, then try to maintain a contact, try to look into your own eyes, right? Always maintain eye contact. इसको अभी से प्रैक्टिस बना लीजिए अपनी, कि जब भी आप किसी से बातचीत करें, आंखें कभी भी नीचे देखें, चुराएं नहीं। आप बातचीत करते समय हमेशा आई कांटेक्ट बना करके बात कीजिए। Enhance your knowledge and preparation. When you know that what is the subject of discussion, you must prepare well. अगर कोई business meeting है, अगर आप किसी group discussion में participate करने वाले हैं, या फिर otherwise और भी किसी भी forum में आप participate करने वाले हैं, कोई topic discuss होने वाला है और आपको उसका knowledge है, never participate without enough preparation. आपको हमेशा जो है उस बारे में रिसर्च करके, थोड़ा सा प्रिपेयर करके, तब आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यू विल सी अ टैंजिबल डिफरेंस, यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट मोर, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस मोर, you will be able to contribute more. Ask questions to yourself and answer those. जब आप पढ़ाई भी करते हैं ना, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब टेक्निकल टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। आप तो कहियो कि एग्जाम भी आने वाले होंगे, अदरवाइज नेक्स्ट अटेम्प्ट में मे भी कोई दूर नहीं है, अब तो नवंबर आने वाला है, मे भी कोई बहुत दूर नहीं रहा। आप अपने आप को क्वेश्चंस पूछिए एंड ट्राई टू से दैट आंसर अलाउड, ट्राई टू रिपीट दैट आंसर ना आफ्टर यू हैव स्टडीड इट। तो इस तरीके से आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज में सटल डिफरेंस जो है आपको दिखाई देगा। ये सारे पॉइंट्स आप प्रैक्टिस कीजिए, 10 से 12 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए और आप मुझे लिखिए। क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो टू डूज हैं, स्पेशली अगर आप जो है, हर किसी की इच्छा होती है भाई टू अटेम्प्ट पब्लिक स्पीकिंग, टू बी एबल टू कंफर्टेबली speak in front of a group with a larger audience. If you can conduct well, then nothing like it. And all of us in some area, we all aspire to kind of maintain ourselves well. हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे से बातचीत कर पाए, आराम से कॉन्फिडेंटली मैं बोल पाऊँ, मुझे हेजिटेशन ना हो, सबके मन में होती है ये चीज़। हाउ टू डेवलप becomes a question mark. तो ये आप कुछ पॉइंट्स जो हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलवेज स्पीक क्लियरली। जब भी आप कुछ बोलते हो, हम करके नहीं बोलना है। कई बार आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो बहुत फास्ट बोलते हैं, आपको बोलना पड़ता है, अरे भाई ट्रेन नहीं भाग रही है, धीरे धीरे बोलो। होता है ऐसा, हम सबके साथ होता है। आई एम सो सॉरी, आई कुडंट हियर एनीथिंग, कैन यू प्लीज रिपीट। तो ये फिर से आपको बोलना पड़ेगा, राइट। तो आपको हमेशा क्लियरली बोलना है, इतना क्लियरली बोलना है कि हर कोई जो आपके आसपास है आपकी बात समझ पाए। बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों ये। Always speak clearly. अगर आपको खुद की बात समझ में आ रही है, so it's likely that others are also able to understand you. Choose some of your favorite topics to begin. राइट अगर आपको अटेम्प्ट करना है बोलना, आप पसंदीदा टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा। यू विल बी एबल टू स्पीक विथ enthusiasm and some zeal, and you will enjoy speaking. Right? Why some people are really effective speakers? Some people speak really well because they enjoy speaking. तो आपको वो enjoy करना, आप कुछ ऐसे topics choose कीजिए जहाँ पर आपको मज़ा आता है बात करने में, जो आपको actually थोड़ा सा stimulate करते हैं, वैसे topics आप choose कीजिए to begin with, and then you can develop I think in every domain and area. आपको जो भी आपके काम का area है आप उसमें develop कर सकते हैं। Develop a style. You don't need to copy anyone, right? Original style is the best style. तो आप जो आपके रोल मॉडल्स हैं, जो आपको लगता है बहुत अच्छी बातचीत कर लेते हैं, आप उनको देखिए, उनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए, बट डेवलप योर ओरिजिनल स्टाइल। हाउ टू स्टैंड, हाउ टू बिगिन, हाउ टू टॉक, हाउ टू मूव, ऑल दिस comprises of your style. Right? Explore possible opportunities to speak. Now, my dear friends, this is most important part. When you have learned, you have developed a style. Now you have tried to speak on some of your favorite topics. You think that yes, I speak clearly now. I have tried enough and now I speak very clearly. Now you must actually keep, you should get it rolling now. Explore the opportunities where you can speak, where you can implement these points. तो ये आपको कब मिलेगा?
किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लीजिए। अगर आप आर्टिकल हैं, आप ऑफिस जाते हैं, जस्ट प्लान फॉर अ प्रेजेंटेशन फॉर योर फ्रेंड्स एंड फॉर मे बी फॉर अ क्लाइंट। इफ एट ऑल देयर इज अ प्रेजेंटेशन टू बी मेड, यू कैन रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल। ये आपको ना खुद एक्सप्लोर करने होंगे। ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ICAI ऑर्गेनाइज कराता है। आपके सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ओपन फोरम्स होते हैं, इनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। एंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स दे ऑफर सेवरल अपॉर्चुनिटीज़। आपको ये चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप सचमुच में जो है डेवलप करना चाहते हैं, मौके ढूंढिए और बोलिए। आप कभी भी क्लासरूम में, अगर कोई ऐसा आपके कॉलेज में कोई फेस्ट है, कुछ है जहाँ पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्लासरूम में अगर कुछ आपको प्रेजेंट करना है, तो आपको ज़रूर वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। डेवलप अ फ्लो इज डेवलप्ड विद प्रैक्टिस ऑलवेज। फ्लो जो होता है वो कभी भी एक दिन में हम कोई बोले हमारे पास कोई घुट्टी है, कोई भी आपको कोच, कोई भी मेंटर हो, वो बोले कि भाई एक चम्मच ही दवाई ले लो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक in a flow and you will be very fluent tomorrow. This can't happen. You have to practice every day. Developing a skill takes time. This is like a transformation. And whenever you're planning to develop any skill, that's like a transformation in your personality. Change should be slow and rather it should be of a permanent nature, right? तो ये ज़्यादा important होता है कि जब आपने एक बार, अगर आप कहते हैं कि आप एक इफेक्टिव स्पीकर हैं, सो आप इफेक्टिव स्पीकर हैं। फिर ये नहीं होता कि मैं इफेक्टिव स्पीकर इसी टॉपिक पे हूँ, right? Then you have developed that skill. So it's a slow process, but yes, it is for good. तो आपको वो चीज़ मेंटेन करनी है। Now, some of the things which I want to suggest to you, especially when you are at your workplace, especially अगर आप young professionals हैं, अगर आप articles, आप senior students हैं जो कि कहीं पर काम कर रहे हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। Be empathetic. कभी भी दोस्तों बातचीत करते समय जो है एम्पैथी वाला एलिमेंट को भूलिए नहीं। कभी भी अपने बातों में सरकाज़म या कोई नेगेटिव या हर्टफुल कमेंट आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज रीड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव स्पीकर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक पब्लिक स्पीकर हैं या फिर हम एक डायस पर ही बोलते हैं। वेन एवर वी आर सेइंग समबडी इज एन इफेक्टिव स्पीकर, दैट मीन्स इन जनरल दे हैव हाई स्पीकिंग एबिलिटीज, चाहे वो वन ऑन वन हो, चाहे वो वन ऑन मेनी हो, राइट? तो ऑलवेज रीड नॉन वर्बल क्यूज। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है आपका? सब कुछ। अपीयरेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, राइट, जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो किसी को भी आप पढ़ना सीखिए, धीरे धीरे आप डेवलप कर लेंगे, है ना? कई बार क्या होता है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और स्पीच जो है वो मैच नहीं कर रही होती। इस टाइम पे व्हाट इज प्रेफर्ड, व्हाट शुड बी पेड मोर अटेंशन टू, व्हाट शुड बी कंसीडर। आपको वहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपको कंसीडर करना चाहिए। ऑलवेज कंसीडर इफ समबडी इज अनवेल, इफ समबडी इज एक्चुअली अपसेट अबाउट समथिंग, तो ये चीज़ें आपको वर्क प्लेस पर ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। इवन इफ दे से समथिंग एल्स, इफ देयर बॉडी लैंग्वेज इज रिवीलिंग समथिंग एल्स, यू मस्ट कंसीडर इट एंड यू मस्ट बी एम्पैथेटिक एज वेल। बी अ गुड लिसनर, स्पेशली व्हेन यू आर अ मैनेजर, व्हेन यू आर एट अ सीनियर पोजीशन। और सीनियर पोजीशन की मैं बात करी तो मैं ये नहीं करी कि कोई हियरार्किकल आपको सीनियर पोजीशन की मैं बात करी। भाई आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपको हायर किया जाता है, तो जनरली इट इज़ नॉट फॉर क्लरिकल रोल्स, राइट? यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके साथ एक पूरी टीम भी हो सकती है। तो वहाँ पर आपकी लिसनिंग एबिलिटीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्पीक वेल ओनली व्हेन यू लिसन इफेक्टिवली, एक्टिवली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब आप पूरी तरह प्रॉब्लम को समझेंगे ना, तभी तो आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। Until I understand what you are telling me, how will I be able to respond to you? तो ये बहुत ज़रूरी बात होती है। During counseling sessions, I allow all my candidates जो भी होते हैं during mentoring sessions, सबको मैं आराम से बोलने का मौका, उनकी हर एक बात सुनकर, समझकर, then I prefer to respond, right? That is how even they feel comfortable, they feel heard, and I'm also able to understand their problems fully before I respond or offer them solutions, right? So be clear and to the point. प्रेसाइज अगर आप रहेंगे, टू द पॉइंट अगर आप रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस भी कम होते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फ्लो में गड़बड़ भी बोल जाते हैं बहुत सारी बातें। ये आपने भी महसूस किया होगा, सबके साथ होता है ये, राइट? ग्रुप में अगर कुछ लोगों को बहुत बोलने की आदत है, कई लोग बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, तो बातों बातों में वो कई सारी ऐसी चीज़ें भी बोल जाते हैं जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो इररेलेवेंट है या फिर समहाउ कई बार हर्टफुल भी हो जाता है। सो वी शुड बी क्लियर एंड वी शुड बी टू द पॉइंट, स्पेशली व्हेन इट इज़ पर्टेनिंग टू वर्क प्लेस। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब आपको किसी से बातचीत बढ़ानी हो तो दोस्तों मौसम का जायका पूछना, है ना, घर की गृहस्थी की थोड़ी सी बातें कर लेना, जनरली टू आस्क अबाउट हेल्थ, जनरली टू आस्क अबाउट हाउ थिंग्स आर इन योर सराउंडिंग्स एक्सेट्रा, आर
गुड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, काम के बारे में भी जनरली कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लीजिए. आपको पता है somebody was working on some project, so you can generally ask a question about that, है ना. ये तरीका बहुत अच्छा होता है बातचीत की शुरुआत करने का, एक कनेक्शन बनाने का. So you should be ready with such questions always, especially वर्क प्लेस के अलावा भी, जैसे पर्सनल इंटरेक्शन भी अगर आप किसी से करने वाले हैं, पीपल लाइक टू रेस्पॉन्ड टू लाइक जनरली सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटिंग टू देम, राइट. सो यू मस्ट कीप सम क्वेश्चंस रेडी, स्पेशली व्हेन यू नो दैट यू मे बी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन. शेयर व्हाट यू कैन ऑफर. हमेशा अपने बारे में जब आपको बातचीत करनी है तो बजाय अपना, बहुत जैसा कई लोग क्या होता है जब बातचीत शुरू करते हैं सेल्फ ब्रैगिंग से शुरू करते हैं, इतनी बातें अपने आप के बारे में बड़ी बड़ी कर देते हैं कि वो कई बार बोरिंग हो जाता है, सुनने वाले के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है. सो वी कैन ऑलवेज सजेस्ट व्हाट वी कैन ऑफर, राइट. व्हाट इज योर स्किल, व्हाट यू ऑफर, व्हाट यू वर्क ऑन, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता करके शुरुआत कर सकते हैं. ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स. किसी का कुछ भी आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इन जनरल भी अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्पीकर के रूप में सामने आए, लर्न टू अप्रिशिएट अदर्स वर्क, अटायर, अपीयरेंस, कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी है उसको फटाफट एक्सप्रेस किया करिए. ये आपका पर्सनल स्पेस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों. अप्रिसिएशन हर किसी को पसंद है. प्रेजेस एंड अप्रिसिएशंस आर ऑलवेज वेलकम. एवरीबडी लाइक्स इट. आपको कोई तुरंत से आपकी कोई वाहवाही करे, आपको कोई तारीफ करे, भाई आज तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, वाओ व्हाट अ हेयर डू, वाओ व्हाट अ स्टाइल, व्हाट अ नाइस शर्ट यू वेयरिंग, या फिर अदरवाइज ओ एक्सीलेंट वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं. इंस्टेंट जो है एलिवेट हो जाता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल. तो ये सब चीज़ें जब आपको अच्छी लगती हैं तो ये हर किसी को अच्छी लगती हैं. यू मस्ट नॉट मिस अ चांस और एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिसिएट अदर्स. दैट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट यू टू द पीपल, राइट. इसके अलावा दोस्तों, स्पेशली अगर आप पब्लिक स्पीकिंग अटेम्प्ट करना चाहते हैं, टॉपिक्स की बहुत अच्छे से रिसर्च करके जाइए. जब आपके पास बोलने के लिए मटेरियल होगा तो आप रुकेंगे नहीं. ये स्पेशल कुछ टिप्स हैं. आप पब्लिक स्पीकिंग अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपको स्टेज पर बोलने का शौक है, या फिर आप उसको डेवलप करना चाहते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह देना चाहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए कुछ पॉइंट्स. ऑलवेज रिसर्च अ टॉपिक एंड प्रिपेयर वेल. ऑर्गेनाइज योर आइडियाज लॉजिकली, है ना. आपको हमेशा अपने आइडिया सीक्वेंस में लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए. आपको उसको बोल करके प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा. एम्प्लॉय फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स. आप जितने स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, जितना आप यहाँ पर ना डेटा और फैक्ट्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे, दैट हेल्प्स यू टू एंगेज एंड कनेक्ट विद द क्राउड. जो लोग आपकी बात सुनने बैठे हैं वो क्यों सुनेंगे आपकी बात, जब वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे. ये बहुत ज़रूरी होता है. इनकॉर्पोरेट ह्यूमर. कोई ऐसी कहानियाँ, कोई ऐसी बातें जो थोड़ा सा गुदगुदा सके, जो थोड़ा सा हंसा सके, तो ये जो है ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है. इससे आपका इंस्टेंट जो है अपने ऑडियंस के साथ में कनेक्शन बन जाता है. स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड एंड स्ट्रॉन्गर. देखिए कोई ऐसे अच्छे से कोई कोटेशंस वगैरह हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो अच्छा कनेक्ट बना सके. भाई किसी ने कुछ ऐसा कहा था, कोई ऐसी बात कही थी, जैसे भाई यहाँ पर जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जब हम लेक्चर्स वगैरह या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं, भाई हर कोई ये बताना चाहता है सीएस और पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग. इसके अलावा जैसे भाई पीएम मोदी ने बोला था कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सिग्नेचर है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ पीएम सिग्नेचर. सो दीज आर सम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, राइट, जो फटाफट से क्लिक कर जाते हैं. कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ रिसर्चेस, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब बातें जो हैं ये इंपॉर्टेंट बातें हैं. ये आप यूज़ कर सकते हैं शुरुआत में, स्पेशली for public speaking. I'm telling you all these points, right? And end stronger. Understand your audience. Most important. आप प्रोफेशनल स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आप स्कूल स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, या फिर आपका जो क्राउड है इन जनरल, आर दे is it the senior lot, right? So ये are they children or are they oldies, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करेगा आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी स्पीच वगैरह की आप तैयारी करेंगे. यूज़ अप्रोप्रिएट जेस्चर्स एंड मॉड्यूलेट योर वॉइस. दोस्तों अगर एक जैसी बातचीत हो, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स बोलूँ, रिसर्च द टॉपिक, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज लॉजिकली, एम्प्लॉय फैक्ट्स. आप सब यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, मेरी बातचीत सुनने के लिए ही कोई नहीं बचेगा. बहुत ज़रूरी होता है वॉइस मॉड्यूलेशन. जब आप प्रोसेस करते हैं, जब आप बोलना शुरू करते हैं, मॉड्यूलेशन, कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ पर ज़ोर से बोलना है, कहाँ पर धीरे से बोलना है, कहाँ पर आपको एम्फेसाइज करना है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू एंगेज विद द ऑडियंस, टू अट्रैक्ट द ऑडियंस. वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरैक्ट विद ऑडियंस. दोस्तों 4-5 सवाल आप पूछ लीजिए, फटाफट सबका अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाता है सवालों की तरफ. जब हम स्पेशली जब जैसे स्पेशल क्लासेस वगैरह होती है जहाँ पर पोल करने के लिए कुछ ऑप्शन है, जहाँ पर एंगेज करने के लिए कुछ ऑप्शन है, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए. फायदे का रहता है वो, राइट. सीक फीडबैक.
Always when you seek feedback, people are it is likely that people would respond to you more effectively, right? और जैसे ही वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे आपको फीडबैक मिलता है, तो उनका अटेंशन जो है वो आप अपनी तरफ खींच पाते हैं. Act and speak ethically, especially while public speaking. When you attempt public speaking, आपके जो एथिक्स हैं, आपकी जो जेन्युइननेस है, आप जो सिंसिरिटी आप डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दोस्तों वो बहुत वाइटल रोल यहाँ पर प्ले करती है, राइट? योर ऑडियंस शुड बी एबल टू ट्रस्ट यू as an expert, as somebody who's sincere, who's getting them facts. जो बातचीत हो रही है वो काम की हो रही है, यूटिलिटी वैल्यू वहाँ पर होनी चाहिए. ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. Whenever you are speaking publicly, maintain all these points. ये always keep in mind these important points. Remember, नो वॉट यू वॉन्ट टू से. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेशली व्हेन यू वांट टू स्पीक इफेक्टिवली. नो वॉट यू वॉन्ट टू से. ऐसा नहीं रैंडम खड़े हो गए बस मुझे बोलना है, कुछ तो भी मुझे बोलना है. नो, इट विल नॉट वर्क. यू विल नेवर बी एबल टू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर. तो आपको जब भी बोलना है, know what you want to say. The idea should be clear in your mind. Control your fear. दोस्तों कोई किसी को जज नहीं कर रहा, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है यहाँ पे. और क्या फर्क पड़ता है अगर कोई जज कर रहा है तो. You should be confident about what you want to say and how you want to say it. That's all. जब तक आप दूसरों के चक्कर में आते रहेंगे ना, आप कभी भी अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. ये सबसे ज़रूरी बात होती है. कोई अगर आज हंस भी रहा है तो आप उसको हंसने दीजिए, खुश है आपकी वजह से, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और फटाफट जो है वहाँ पर कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको मिले कि आप उसको अप्लाई भी कर सके. लिसन मोर. आपको जब बोलना होता है ना, लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है, एक लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपको बोलना है, पहले ध्यान से सुनिए. लिसन मोर देन यू स्पीक, राइट? थिंक बिफोर यू टॉक. ऑलवेज ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. सेल्फ अवेयरनेस होती है कि जब आप जो सोशल अवेयरनेस, भाई जैसे आप बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच लेते हैं, राइट? सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आता है ये सारी बातें जो है. ये आप जब आप जैसे अगर आपने पढ़े हो डैनियल गोलमैन के ये सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट भी हैं. ये आप जैसे अगर आप पढ़ते हैं ना, सेल्फ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है टाइम मैनेजमेंट और अपना खुद का. इसके अलावा थिंक बिफोर यू टॉक. आप अपने जब बातचीत के पहले आप पूरा सोच करके बोलते हैं. सो यू हैव मैनेज योरसेल्फ सो वेल. सेल्फ मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात होती है. और एक मैनेजर्स जो आजकल जो मैनेजर्स हैं, स्पेशली अभी आप सब जानते हैं कोविड के टाइम पे किस तरीके से सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं. आने वाले टाइम के लिए मैनेजर्स और लीडर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है ये जो विच इज़ अ वेरी सॉट आफ्टर क्वालिटी. दे शुड बी गुड सेल्फ मैनेजर्स. सो दे शुड बी एबल टू थिंक बिफोर दे टॉक, राइट? बोलने से पहले अच्छी तरह सोच समझ करके फिर उस चीज़ को आप फॉरवर्ड रखिए. बी जेन्युइन. टॉक विथ पैशन एंड कन्विक्शन. आप एक्चुअली जब आप इफेक्टिवली अपनी बात रख पाएंगे एंड कब रख पाएंगे, व्हेन यू विल बी पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. आप जब भी कोई बात जो है ध्यान से समझेंगे और बोलेंगे, आपका टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होगा, आप उसके आसपास जो है थोड़ा सा पैशन डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे. आप सचमुच आप कितना चाहते हैं उसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने के बारे में, उसको एनहांस कराने के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको, कितना पैशनेटली मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपको मेरी बातचीत से समझ में आएगा, आप मेरे साथ एंगेज कर पाएंगे. टॉकिंग विद पैशन एंड कन्विक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कि आप हाँ कर पाएं, राइट? कन्विक्शन इज इम्पॉर्टेंट. वट एवर आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम आस्किंग यू टू प्रैक्टिस दिस एंड प्लीज राइट बैक टू मी, प्लीज गिव मी इनपुट्स एंड फीडबैक. तो ये चीज़ आपको कन्विंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, right? You'll be convinced when I tell you that write back to me. That means you'll trust my experience and my background. कि अगर मैम बोल रही हैं कि वापस मुझे लिखना, so yes, perhaps results मिलेंगे. So it is important when you're passionate about something and you demonstrate that passion and genuineness, you will be able to convince the audience as well. ये important point होता है दोस्तों. Audience जब convince होगी तो certainly you will come across as an effective speaker. Understand your audience. ये point हम चर्चा already कर चुके हैं और आप ये समझ ही गए होंगे कि आप ऑडियंस को अगर समझ पाएंगे, आपकी ऑडियंस कौन है, इसका आपको आइडिया क्लियर होगा, आप अपनी स्पीच, आप अपना स्पीकिंग पार्ट बेहतर तैयार कर पाएंगे, right? So my dear friends, this is all from my side today on speaking skills, right? We will connect more in future. We'll keep connecting
and we will discuss more such topics that can be beneficial to you. In case you have something in mind which you may want to ask me or which you may want to discuss, you can write to me over LinkedIn or you can connect with me over Unacademy messages. If any of you watching this session, if your desire is to enroll for Unacademy Plus classes, you can use this referral code KHARE10 to buy the subscriptions, and you can avail some instant discount as well. Right? So with this, I wish you all good luck. I hope that you all will benefit through these tips and these effective ways to practice. दोस्तों ज़रूर practice कीजिएगा इन points की, और आप हफ्ते 10 दिन 12 दिन आप practice करके to write back to me about your progress, about how you felt, if you can see some tangible difference, if you can measure the progress, आप मुझे ज़रूर लिखिएगा. मुझे बेहद खुशी होगी आपको आगे और हेल्प करके या फिर आपसे फीडबैक सुन करके. Take care. God bless you. Bye bye.